Welcome back, my dear students. I am your teacher Manisha Agarwal from the channel Manisha's Teaching. Today we will cover the rest half of the chapter of Uncle Ken at the wheel. Yesterday I have completed the first half of the chapter. So you can check out the first part of the chapter if you have not yet. So without any further delay, let's begin the rest of the half chapter. Yesterday we have covered till here. So, what was the last sentence? I don't think it will run now, said Granny. Granny is telling to Uncle Ken that the car which he is thinking of running, whose car? Grandfather's old car. What was the name of the car? The name of the car was Hillman Roadster. So, Granny is saying that she don't think that old car will run anymore. Why? Because it had got very old. So she said, I don't think it will run now anymore. Now what Uncle Ken is saying? Of course it will. It just needs some oiling and greasing and a spot of paint. What he's saying? Although it is old, but it will run. Only if we put some oiling and we do some greasing. So what is the meaning of oiling and greasing? To give a coat of oil. And what is grease? Grease is a thick oil. Oil, comparing to grease, is more liquidified, and grease means a very thick oil. So there's a slight difference between these two words. Otherwise, almost both are same. And a spot of paint. What do you mean by spot? Means he wants to say that we don't need to paint the bicycle, don't need to paint the car fully. We have to paint only where is needed. Okay, so that is called spot of paint. Of course it will. It just needs some oiling and greasing and a spot of paint. Uncle Ken is saying. All right, learn to drive. Who is saying? Grandmother. Because Uncle Ken don't know how to drive. So she said, okay, first go and learn how to drive. Then we will see about the roadster. What she's saying, first go and learn in the driving school. Be a professional driver, and then we will think about roadster later on. So Uncle Ken joined the driving school. Okay, so from that day onwards, Uncle Ken joined the driving school to learn how to driving. He was very regular. What is the meaning of regular? Means he was very serious in learning. So he used to go to the school, driving school regularly, means daily. Going for his lessons means going every day he used to go, and he never missed a single day. He was very serious to learn the driving and going for his lessons for an hour every evening. That means every evening for 1 hour, he used to go to learn driving. Granny paid the fees. Who paid the fees? Because as he's learning, he has joined some school, he has to pay fees, right? So, Granny paid the fees. After a month, Uncle Ken announced that he could drive. Just a month happened, he joined the driving school and he announced that he could drive. That means he is saying everyone that now he know how to drive completely. And that he was taking the roadster out for a trial run. What he is saying? He is saying that he wants to take the roadster, means that the old car, for a trial. Trial means just for giving a practice. So he wants to take the car outside just for giving a practice. Okay. You haven't got your license yet. कौन कह रहा है? Grandmother. क्या बोल रही है? कि अभी तक तुम्हें लाइसेंस नहीं मिला है. Now what is license? License is an official document which acts as a proof that you know how to drive. Means it is just a certificate of yours to prove कि आपको ड्राइविंग आती है. Okay? You haven't got your license yet. Granny ने कहा. Grandmother ने क्या कहा? तुम्हें लाइसेंस नहीं मिला अभी तक, तो आप प्लीज़ रिस्क मत लो और अभी बाहर मत ले जाओ रोडस्टर, क्योंकि आप अभी इतने प्रोफेशनल नहीं हो.
अभी आप इतने ट्रेन नहीं हुए हो। ओह आई वॉन्ट टेक हर फार, क्या बोल रहा है वो, अंकल कैन क्या बोल रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा दूर उसे नहीं लेके जाऊँगा, मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं लेके जाऊँगा इसे, जस्ट थोड़ी सी ट्रायल, थोड़ी दूर मैं जाऊँगा उसे लेके। सेड अंकल कैन जस्ट डाउन द रोड एंड बैक अगेन, जस्ट डाउन द रोड एंड बैक अगेन मतलब थोड़ी दूर लेके जाऊँगा, आसपास ही, और वापस ले आऊँगा। ही स्पेंट ऑल मॉर्निंग क्लीनिंग अप द कार, वो पूरी सुबह, हर पूर्ण मीन्स नेक्स्ट डे जो सुबह था, उस सुबह को पूरा सुबह उसने बिता दिया कार को साफ़ करने में, चमकाने में। क्यों? क्योंकि अब वो उस दिन बाहर लेके जाना चाहता था रोडस्टर को, खुद ड्राइव करके। ग्रैनी गेव हिम द मनी फॉर अ कैन ऑफ पेट्रोल, अब कार चलाएगा तो उसमें पेट्रोल की भी नीड है, अब वो पेट्रोल कहाँ से आएगा? तो उसके लिए उसे एक कंटेनर जो कि पेट्रोल से भरा हुआ हो वो ख़रीदना पड़ेगा, और ख़रीदने के लिए पैसे चाहिए। तो ग्रैनी ने उसे पैसे दिए एक कंटेनर पेट्रोल का ख़रीदने के लिए। कैन मीन्स कंटेनर। ही स्पेंट ऑल मॉर्निंग क्लीनिंग अप द कार, ग्रैनी गेव हिम द मनी फॉर अ कैन ऑफ पेट्रोल। आफ्टर टी अंकल कैन सेड, चाय पीने के बाद अंकल कैन बोल रहे हैं क्या? कम अलोंग रस्टी, रस्टी मेरे साथ चलो। हॉप इन यानी कार में बैठो, एंड आई विल गिव यू अ राइड, और मैं तुम्हें एक राइड पर ले चलता हूँ। कहने का मतलब है अंकल कैन सबको दिखाना चाहते हैं कि वो कितनी अच्छी ड्राइविंग सीख चुके हैं, और वो बहुत अच्छे से अब एक तरह से ड्राइविंग मास्टर हो गए, एक प्रोफेशनल ड्राइवर हो गए। ब्रिंग मोहन अलोंग टू, क्या कह रहा है कि अपने साथ मोहन को भी ले लो, हम तीनों राइड पर चलेंगे। ओके, मोहन एंड आई डिडंट वांट टू टेक एनी चांसेस। रस्टी क्या बोल रहा है? हमसे बात करते हुए बोल रहा है कि मोहन और मैं दोनों कोई चांस लेना नहीं चाहते थे, मीन्स कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि हम लोग जानते थे कि अभी अंकल कैन बहुत अच्छी तरह से उन्हें ड्राइविंग नहीं आई है, क्योंकि उन्हें अभी सीखते हुए 1 महीना ही हुआ है। वो अपने आप को ऐसा शो कर रहे हैं कि वो एक प्रोफेशनल ड्राइवर है, लेकिन वो अभी इतनी अच्छे से उन्हें ड्राइविंग नहीं आई है, तो वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते उनके साथ जाकर। नेक्स्ट टाइम अंकल कैन आई सेड, रस्टी क्या बोल रहा है कि कभी और चलेंगे। कहने का मतलब है इस टाइम आप जाइए, अगली बार हम श्योर आप लोग के साथ जाएंगे। नाउ डोंट गो टू फास्ट कैन, सेड ग्रैनी एंक्शसली। ग्रैनी क्या कह रही है, ग्रैंडमदर क्या कह रही है? बहुत दूर मत जाना कैन, बहुत चिंता करके वो कह रही है। एंक्शसली मतलब घबराहट के साथ, हेजिटेशन के साथ। यू आर नॉट यूज टू द कार येट, तुम अभी तक अच्छी तरह कार चलाना या कार चलाने की हैबिट तुम्हें अभी तक अच्छे से नहीं हुई है, तो तुम बहुत फास्ट मत चलाना और बहुत दूर भी मत जाना। अंकल कैन नॉडेड, नॉडेड मीन्स उन्होंने हाँ में सर हिलाया, एंड स्माइल्ड एंड गेव 2 शार्प टूट्स ऑन द हॉर्न। उन्होंने हाँ में सर हिलाया और स्माइल किए, एंड गेव 2 शार्प टूट्स मतलब साउंड, शार्प साउंड दिया उन्होंने हॉर्न को 2 बार बजाया ज़ोर से। ही वॉज फीलिंग प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ, और ये कर वो बहुत खुश हो रहे थे, उन्हें बहुत खुशी हो रही थी। एंड येस दिस इज़ नेचुरल ना, अगर हम कुछ नया करते हैं और हमें लगता है कि हाँ हमें वो चीज़ आ गई है, तो हमें अंदर में एक अजीब सी खुशी मिलती है, राइट। तो सेम एज़ अंकल कैन के साथ भी वही हो रहा था, क्योंकि उनकी नई नई ड्राइविंग थी, नए वो ड्राइवर बने थे। हालांकि वो इतने अच्छे ड्राइवर बने नहीं थे अभी, लेकिन उन्हें लग रहा था कि वो बहुत अच्छे ड्राइवर बन गए, तो उन्हें बहुत खुशी हो रही थी हॉर्न को बजाते हुए और अपने आप को एक प्रोफेशनल ड्राइवर दिखाते हुए। मिस केल्नर कमिंग आउट फॉर हर इवनिंग वॉक, उनके घर के आसपास ही कोई मिस केल्नर बोल के एक लेडी रहती थी, जो कि हर शाम को इवनिंग वॉक पर आती थी बाहर। सॉ अंकल कैन एट द व्हील ऑफ द रोडस्टर, जब उसने देखा कि रोडस्टर यानी पुरानी गाड़ी का जो नाम था उसमें बैठकर अंकल कैन ड्राइव कर रहे हैं, एंड वेंट इनडोर्स अगेन, तो वो उसने क्या किया, वो वापस घर के अंदर चली गई। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता था कि अंकल कैन अभी बहुत अच्छी तरह से
ड्राइवर नहीं बने हैं, उन्हें इतनी अच्छे से ड्राइविंग नहीं आती। तो मिस केलर ने भी कोई रिस्क नहीं लिया और जैसे ही वो इवनिंग वॉक पर आ रही थी, उसने देखा अंकल केन को अपने रोडस्टर में बैठे हुए, तो वो क्या की, जल्दी से अपने घर के अंदर घुस गई। किस लिए? क्यों? क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो उसे हिट ना कर दे, कहीं उसे लग ना जाए। अंकल कैन ड्राइव स्ट्रेट एंड फास्ट। अंकल कैन ड्राइव मीन्स उन्होंने ड्राइविंग की, चलाई गाड़ी को एकदम स्ट्रेट एंड फास्ट। टूटलिंग द हॉर्न, टूटलिंग अगेन मीन्स टू गिव अ शार्प साउंड, ज़ोर से आवाज़ करना हॉर्न की, विदाउट अ ब्रेक, बिना ब्रेक मारे। वो स्ट्रेट और फास्ट चले जा रहे थे। एट द एंड ऑफ द रोड देयर वाज अ राउंड अबाउट। नाउ व्हाट इज़ राउंड अबाउट? जैसे वो स्ट्रेट जा रहे थे और बहुत फास्ट जा रहे थे, तो वहाँ पर उन्हें एक राउंड अबाउट मिला। राउंड अबाउट मतलब अ प्लेस वेयर मोर देन 2 or 3 रोड्स मीट विथ ईच अदर। हिंदी में जैसे हम लोग कहते हैं चौराहा, 4 रास्ते जहाँ मिलते हो या 4 से ज़्यादा रास्ते जहाँ मिलते हो, उसे राउंड अबाउट बोलते हैं। ओके, सो जैसे ही वो स्ट्रेट जा रहे थे और फास्ट जा रहे थे, तो उन्हें एक राउंड अबाउट यानी चौराहा मिला। आई विल टर्न हियर थॉट अंकल कैन। अब चौराहा को देखकर या बहुत सारे वो जगह जहाँ पर कई सारे रास्ते मिलते हैं, उसे देखकर अंकल कैन थोड़ा घबरा गए, क्योंकि वो प्रोफेशनल ड्राइवर तो थे नहीं। तो उन्होंने सोचा आई विल टर्न हियर, कि मैं इस चौराहे को थोड़ा सा टर्न करूँगा और वापस वहीं आ जाऊँगा, यानी अपने घर वापस आ जाऊँगा। एंड देन ड्राइव बैक अगेन। क्या कह रहे हैं कि वो चौराहा को एक टर्न मारेगा और टर्न करके वापस अपने घर आ जाएगा। ही टर्न द स्टीयरिंग व्हील, जो गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील होती है उससे वो टर्न करने की कोशिश करता है। ही बिगैन गोइंग राउंड अबाउट, उसे थोड़ा सा टर्न कर पाया वो, बट द स्टीयरिंग व्हील वुड नॉट टर्न ऑल द वे। पर स्टीयरिंग व्हील उतना नहीं कर पाई, नॉट एज मच एज अंकल कैन वुड हैव लाइक्ड इट टू, जितना वो चाहते थे कि पूरा एक चक्कर लगा के वो वापस बैक हो जाएंगे, बैक ड्राइव करके वापस अपने घर आ जाएंगे, उतना वो टर्न नहीं कर पाए, क्योंकि वो प्रोफेशनल ड्राइवर अभी नहीं है, अभी उन्होंने ड्राइविंग सीखी। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग राउंड, इसलिए पूरा चक्कर काटने के बजाय उसके बदले ही टुक अ राइट टर्न, उन्होंने एक राइट टर्न ले लिया, यानी राइट साइड टर्न कर लिया अपनी कार को, क्योंकि वो पूरा टर्न नहीं कर पाए अभी। एंड केप्ट गोइंग स्ट्रेट ऑन, और राइट टर्न करते करते स्ट्रेट चले गए। एंड स्ट्रेट थ्रू द महाराजा ऑफ गुलशन्स गार्डन वॉल। जैसे ही राइट टर्न करके वो स्ट्रेट जा रहे थे, तो वह कहाँ पहुँचे? एकदम स्ट्रेट जाते हुए कहाँ पहुँचे? एक गार्डन वॉल में। एक गार्डन था, लॉन था, उसमें एक वॉल थी, एक ब्रिक की वॉल, जो कि किसकी थी? महाराजा की थी। और उस वॉल का नाम था गुलशन्स गार्डन वॉल। उसके जो ओनर थे उनका नाम था महाराजा। ओके, वंस मोर ही टर्न द स्टीयरिंग व्हील, ही बिगैन गोइंग राउंड द राउंड अबाउट, बट द स्टीयरिंग व्हील वुडंट टर्न ऑल द वे, not as much as Uncle Ken would have liked it too. So instead of going round, he took a right turn and kept going straight on and straight through the Maharaja of Gulshan's garden wall. तो वो कहाँ पहुँच गए? महाराजा गुलशन के गार्डन वॉल के पास। It was a single brick wall. वो एक ईंटे की दीवार थी। And the roadster knocked it. Knocked it means हिट करना, स्ट्राइक करना, टकराना। ओके, इट वॉज अ सिंगल ब्रिक वॉल एंड द रोडस्टर नॉक्ड इट, उससे टकरा गई उनकी कार। डाउन एंड इमर्ज्ड, नॉक्ड इट डाउन मतलब उसे टकरा कर, उसे तोड़कर वो इमर्ज हो गई, अंदर प्रकट हो गए, अंदर चले गए। ओके, अंदर चले गए, यानी वॉल को ब्रेक करके उनकी कार अंदर चली गई। On the other side, without any damage to the car or its occupant. जैसा कि आप पिक्चर में देख सक रहे हैं कि ये एक सिंगल ब्रिक वॉल है, उसे वो ब्रेक करते हुए अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम वॉल को हो रही है। वॉल ब्रेक हो गया, वॉल डैमेज हो गई, बट जो व्हीकल जो है यानी जो कार है उसके अंदर कोई डैमेज नहीं हुआ, कार को कोई डैमेज नहीं हुआ है, ना ही कार में बैठे हुए ऑक्यूपेंट मतलब वो लोग जो व्हीकल के अंदर बैठे हैं।
और जो अंदर बैठा हुआ दैट मीन्स ओनली अंकल कैन, उनको भी कोई डैमेज नहीं हुआ, ना ही उन्हें कुछ लगा है। यानी डैमेज किसका हुआ है? ओनली द वॉल का, जो कि एक सिंगल ब्रिक वॉल यानी एक ईंटे की वॉल जो थी सिर्फ उसका डैमेज हुआ है, वो टूटी है, बाकी कोई नुकसान नहीं हुआ, ना कार को ना ही अंकल कैन को। ओके, अंकल कैन बॉट इट टू अ हॉल्ट इन द मिडल ऑफ द महाराजा's लॉन। जब वो ब्रेक करके कार अंदर चली गई तो वो एक लॉन था। लॉन मीन्स वो एरिया जो पूरी तरह ग्रास से कवर्ड हो। ओके, अ टाइप ऑफ, यू कैन से अ टाइप ऑफ ग्राउंड पार्क। ओके, पर वहाँ की ग्रास इक्वल लेंथ में कटी हुई होती है और बहुत ही नीटनेस होता है वहाँ, उसे लॉन कहते हैं। ओके, तो उनकी कार कहाँ जाके हॉल्ट हुई? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हॉल्ट? स्टॉप। स्टॉप हुई एकदम लॉन के, महाराजा का जो लॉन था उसके एकदम मिडिल में जाकर। ओके, नाउ रनिंग अक्रॉस द लॉन, लॉन के बीचों बीच जाते हुए वॉज द महाराजा हिमसेल्फ। अंकल कैन ने क्या देखा कि वहाँ पर महाराजा खुद खड़े थे। महाराजा कौन? जो गुलशन वॉल है उसके ओनर, वो महाराजा वहाँ खड़े थे। और उनके साथ कौन था? फ्लैंक्ड बाय हिज सेक्रेटरीज। फ्लैंक्ड मतलब घिरे हुए थे, यानी आसपास खड़े हुए थे। खड़ा हुआ था कौन? उनकी सेक्रेटरीज एंड असिस्टेंट्स। फ्लैंक्ड मीन्स टू बी कवर्ड विथ समवन और समबडी टू द राइट एंड द लेफ्ट साइड, मतलब घिरे हुए थे। उनके अगल और बगल दोनों राइट एंड लेफ्ट साइड किसी का होना, उसको बोलते हैं फ्लैंक्ड। फ्लैंक्ड बाय हिज सेक्रेटरीज एंड देयर असिस्टेंट्स। कौन? महाराजा घिरे हुए थे अपने सेक्रेटरीज और असिस्टेंट्स के साथ। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़े ओनर थे लॉन के, बहुत बड़े इंसान थे। एज द वर्ड इटसेल्फ सेज महाराजा, जब उनके लिए एक महाराजा वर्ड डिनोट हो रहा है दैट मीन्स वो कोई आम आदमी नहीं थे, वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन यू कैन से, या बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे। तो जो बहुत बड़े इंसान होते हैं उनके साथ सेक्रेटरीज, असिस्टेंट्स, ऐसे लोग रहते हैं ताकि उनके काम में वो असिस्ट कर सकें, हेल्प कर सकते हैं उन्हें। तो उसी तरह महाराजा भी घिरे हुए थे किसके साथ? सेक्रेटरीज और असिस्टेंट्स के साथ। When he saw who is he here? Here he is referred to महाराजा। जब महाराजा ने देखा it was Uncle Ken at the wheel, उन्होंने क्या देखा कि अंकल कैन है उस कार में। The महाराजा beamed with pleasure. So what is the meaning of beamed? Means खुशी से मुस्कुराना। Okay, to smile cheerfully, to smile happily. द महाराजा ब्लेम्ड विथ प्लेशर। प्लेशर मतलब खुशी, बीम्ड मतलब स्माइल करना। वो बहुत खुशी से स्माइल कर रहे थे उसको देखकर। दैट मीन्स दिस सेंटेंस शोज़ कि कहीं ना कहीं महाराजा उन्हें जानते होंगे, क्योंकि महाराजा का जो एक वॉल, जो ब्रिक का वॉल था लॉन का, उन्होंने उसे अंकल केन ने ब्रेक कर दिया था। उनकी रफ ड्राइविंग के चलते वो ब्रेक हो गया। तो ये देखकर तो महाराजा को तो बहुत एंग्री हो जाना चाहिए। अगर हमारी कोई चीज़ को कोई डैमेज करता है, स्पॉइल करता है, तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे? हम तो बहुत एंग्री हो जाएंगे उनसे। लेकिन यहाँ पर महाराजा एंग्री होने के बदले वो स्माइल कर रहा है, खुश है उसे देखकर। दिस पर्टिकुलर सेंटेंस शोज़ कि महाराजा श्योरली अंकल कैन को पहले जानते थे। राइट, द महाराजा बीम्ड विथ प्लेशर। बीम्ड मीन्स स्माइल करना, प्लेशर मीन्स तो वेरी हैप्पी, आनंद, खुश। ओके, डिलाइटेड टू सी यू ओल्ड चैप। डिलाइटेड टू सी यू ओल्ड चैप। हु इज टेलिंग? महाराजा। महाराजा क्या बोल रहा है? तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। डिलाइटेड मीन्स बहुत खुशी होना। ओल्ड चैप मीन्स ओल्ड फ्रेंड, चैप मीन्स फ्रेंड। महाराजा क्या कह रहा है? डिलाइटेड टू सी यू, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। ओल्ड फ्रेंड मेरा, आप मेरे ओल्ड फ्रेंड हो। ही एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड मीन्स सरप्राइज्ड, शॉकिंग होकर वो बोल रहा है। ओके, जॉली डिसेंट ऑफ यू टू ड्रॉप इन। जॉली डिसेंट मतलब बहुत खुशी की बात है कि तुम आए। ड्रॉप इन मतलब तुम आए यहाँ। ओके, क्योंकि वो जो अंकल कैन है वो उनके पुराने फ्रेंड है, बहुत पुराने फ्रेंड है। और हो सकता है बहुत दिन तक महाराजा ने उन्हें देखा नहीं, इसलिए आज सडनली उसे देखकर
उन्हें बहुत खुशी हो रही है। तो क्या कह रहे हैं, जॉली डिसेंट ऑफ यू टू ड्रॉप इन, बहुत खुशी की बात है कि आप अंदर आके गिरे या अंदर आकर मिले मुझे। हाउ अबाउट अ गेम ऑफ टेनिस, क्या कह रहा है कि जो टेनिस का गेम था, हो सकता है उन लोग दोनों पहले बचपन में टेनिस खेलते हो साथ, और वही टेनिस खेलते खेलते ही उनकी फ्रेंडशिप उनके साथ हुई, वो एक बहुत अच्छे फ्रेंड बने, उनके बचपन के चाइल्डहुड फ्रेंड होंगे। इसलिए वो क्या पूछ रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ अबाउट अ गेम ऑफ टेनिस, कि अभी भी टेनिस का गेम कैसा चल रहा है, किस तरह हम लोग खेलते थे। एक क्वेश्चन में उन्होंने बहुत सारी अपनी यादें बताई हमें कि चाइल्डहुड में जब वो बचपन में बच्चे थे वो दोनों, तो किस तरह वो टेनिस का गेम खेलते थे। तो उनका पूछने का, कहने का मतलब है कि क्या तुम्हें आज भी याद है कि हम किस तरह टेनिस का गेम खेलते थे या टेनिस का गेम खेलेंगे। ओके, तो इस तरह वो अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं। ओके, दैट शोज़ कि वो उनके बहुत पुराने फ्रेंड थे। सो ये सेंटेंसेस हमें दिखा रहे हैं, हमें शो कर रहे हैं कि महाराजा जो है उन्हें देखकर एंग्री नहीं हुआ, क्योंकि उसने क्या किया, उसने तो बहुत बड़ा डैमेज किया उसका, राइट, उसकी वॉल को ब्रेक किया। तो महाराजा को तो उसे डांटना चाहिए था या कोई पनिशमेंट देनी चाहिए थी, लेकिन उसके बदले महाराजा तो उसे देखकर खुश हो रहा है, राइट। तो इट शोज़ कि वो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है और इस तरह वो उसे कोई सीन वो क्रिएट नहीं करना चाहता है, क्योंकि ही इज़ मे बी वन ऑफ द फ्रेंड। ओके, चलो उसका कहने का पता, चलो फिर से एक बार गेम, टेनिस का गेम खेले। ओके, तो हो सकता है बचपन में उन लोग खेलते होंगे, इसलिए वो फिर पूछ रहा है कि क्या आप फिर से खेलें, यानी पुरानी यादें ताज़ा करें। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर, और यहाँ पर हम अपना चैप्टर फिनिश कर रहे हैं। ओके, सो इफ़ एनी डाउट्स, एनीथिंग यू वांट टू शेयर, तो प्लीज़ do comment. And what about Ruskin Bond? I forgot to mention you about Ruskin Bond. See, the writer Ruskin Bond is a famous writer of India. He is a famous Indian writer. Okay, और इनकी ज़्यादातर जो novels, essays वगैरह थी, वो मोस्टली चिल्ड्रन के इंटरेस्ट पर बेस्ड थी। मीन्स इनकी बहुत सारी पोएम्स, novels, essays या स्टोरीज़ जो भी है वो चिल्ड्रन पर बेस्ड है। दैट शोज़ कि रस्किन बॉन्ड was lover of children. Okay, so don't forget to learn few lines on Ruskin Bond. Okay, so that's all for today, and with this we complete our chapter. If you have any doubts or questions regarding this chapter, do notify me in the comment section below. Bye bye students, I hope you all liked my explanation. Thank you so much, and if possible please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.